Okay, guys, welcome to CA Final SCMP July 21 solutions for your different questions. जैसा कि बाकी सब एग्ज़ाम होता है वैसा भी ये एग्ज़ाम भी हुआ SCMP का, जिसमें एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 एक लंबा केस स्टडी का आया। और वो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं तो वो इतना टाइम ले जाता है कि बाकी क्वेश्चन का टाइम छूट जाता है। इसलिए हमेशा सजेस्टेड यही रहता है कि आप क्वेश्चन 1 को थोड़ा बीच में करें या लास्ट में करें। कुछ बच्चों ने इस बात को रिलीजियसली फॉलो किया और कुछ तो परफॉर्म कर पाए उसके कारण। खैर, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा पढ़ने से लग रहा था कि ये किस बारे में, बट एग्जैक्टली इसमें क्या क्या लिखना है अभी हम उसको क्रैक करने के लिए डिस्कशन करें। मेरे हिसाब से इसमें कुछ एक दो नया चीज़ भी था जो जनरली स्टूडेंट को शायद क्लिक ना करे, अदरवाइज एक ब्रॉड आइडिया किस जगह से पूछा गया ये सबको पता चल गया था। सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स, TQM का बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल से पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अभी अपने क्वेश्चन 1 में थोड़ा डीप डाइव करते हैं और इसको समझते हैं। पैल फाइनेंस लिमिटेड, PL यानी पैल, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट। जैसे कि बजाज फाइनेंस से रिलेट करो आप उसको, and is the most diversified and profitable non-banking finance company, having 100 branches across the country. PAL's wide portfolio of product is spread across consumer, small and medium enterprises, commercial lending, and has substantial presence in rural lending as well. तो ये बहुत बड़ा फैला हुआ कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है। PAL is pioneer in introducing interest-free EMI options in more than 50 categories, ranging from consumer durables to lifestyle products to groceries. ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस का यही मेन बिजनेस है। द एवर एंथुजियास्टिक, ऑलवेज एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट wants to make a foray into wealth management business vertical, which will focus on providing simple and effective long-term financial planning concepts and tools for assisting customers in making informed decisions for their saving and investment needs. When the company thought about its strategy to achieve the big goal, ये एक बड़ा गोल इन्होंने सोचा है, the main focus was an important element, what strength of our past do we want to carry into the future। कौन सा पास्ट में हमने जो हासिल किया उसको हम फ्यूचर में भी कैरी ऑन करना चाहेंगे। Of all the options, one thought resonated across, reflecting in all outcomes over the course of existence, which is sustainability। the past में जिंदा रहें तो भविष्य में जिंदा रहना चाहेंगे। This is the outcome of over half a century of work of the parent company White Group, ये इनका पेरेंट है White Group, which is delivered through each business that the group has ventured into। Anything that the company does has to pass through this critical filter। तो फिल्टर यही है कि ये हमेशा चाहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो सस्टेन करे। To press with the idea further, CEO of PAL Finance has narrated 4 of its achievements during the period to the group chairman Mr. Sarva by a soft communication which reads that। soft communication मतलब जैसे कि मेल वेल से या मैसेज वैसेज किया होगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम किया होगा, समथिंग लाइक दैट। फोकस ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर नीड्स, हम वो बोल रहा है कि मैंने ये सब चीज़ों पे काम किया है। वी बिलीव दैट मोर प्रोडक्ट्स पर कस्टमर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय मोर कस्टमर्स बट बाय मोर सेटिस्फाइड कस्टमर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर नहीं लाके हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंट कस्टमर को सेटिस्फाई करें। मोर सेटिस्फाइड आवर कस्टमर्स, मोर लाइकली दे विल पार्टनर विद अस फॉर आवर नेक्स्ट, for their next big pursuit। More likely they will recommend their family and friends to us। The more our customer recommend us, the less we need to worry on getting new customers। The less we worry on getting new customers, the more we'll focus on existing customers। तो बेसिकली यहाँ पे कस्टमर नीड को लेके इसने जो अचीव किया वो अपना बता रहे हैं। Innovation, we were the first to introduce a 3-minute on the spot approval for our consumer durable finance offer। We are now down to 1 minute। इसको BPR बोलेंगे क्या। By the time you have finished reading this, we would have added another partner to our lifestyle finance portfolio, and some of our customers would have already downloaded all their loan account statements through the online portal। तो वो अपना अचीवमेंट बता रहे हैं इनोवेशन को समझाने के लिए। द रिजल्ट ऑफ आवर ऑब्सेशन विद सस्टेनेबिलिटी, इवन इट इज़ अबाउट योर एफर्ट्स। टेक्नोलॉजी के लिए बोल रहा है, फॉर द लास्ट 5 years द कंपनी हैज़ कंटिन्यूड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी
We adopt newer and emerging technologies keeping in mind the needs and preferences of our customers. This gives an unmatched flexibility of engaging with the company for every financing related requirement by the customers. Our technology enables our customers to transact without the restriction of time, place, and proximity. ठीक है? Our customers are in a position to get affirmative answer to questions like, can I apply online? Will I get regular statement of account with every single detail of loan? Giving me access anytime, anywhere. Can I foreclose my loan? Can I borrow back some of the loan I have repaid without a human interface? तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको पढ़ के समझ में आता है। आदमी को ये पता नहीं होता बहुत बार बिजनेस में कि अगर आपको एक लोन लिए हैं, उसका रीपेमेंट कर चुके हैं और आपको फिर से लोन चाहिए, तो उसी सैंक्शनड अमाउंट से आप कुछ लोन को वापस बोरो बैक कर सकते हो। ये फैसिलिटी हर बैंक देता है। ये पढ़ के आपको क्लिक करना चाहिए कि ऐसा भी होता है। अच्छा, द कंपनी डिप्लॉयज टेक्नोलॉजी नॉट टू टेक द ह्यूमन टच अवे बट टू गिव अ रिचर कस्टमर एक्सपीरियंस, allowing a customer to exercise choices even when it comes to bring serviced, because technology alone is not the output, it is the creativity with which it is used that delivers the objective. So ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग किस तरह से कस्टमर सर्विस देते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। Build partnerships to achieve best practices. We believe when our customers buy a product or service from us, they are placing their trust in us. Trust itself is a delicate matter. It needs both expertise and experience together. ठीक है? When we partner with Neil for our online capabilities, with Tapas for our software, ये अपने partners के बारे में बता रहे हैं, Tapas for our software and Sitta for process mapping and Prajna for auditing us, we believe we are implementing zero tolerance to compromise. And even for our partnerships, we have created benchmarks in innovation in how we have deployed their systems and processes to create bold new realities. तो इन्होंने पार्टनरशिप पे काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, इनोवेशन पे काम किया और कस्टमर नीड्स पे काम किया. Now, as a result of all these practices during the current year, our performance shows number of new loans booked increased by 17% to 20 crores. Customer franchise grew by 24% to 30 crores. AUM मतलब होता है assets under management grew by 27% to 1000 crores. Income increased by 43% to 250 crores. Net interest income rose by 42% to 160 crores. Total operating costs grew by 35% to 50 crores. कॉस्ट भी बढ़ा तो इनकम भी बढ़ा. टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट टू नेट इंटरेस्ट इनकम इम्प्रूव टू 33% फ्रॉम 35%, मतलब 35 से 33 आ गया तो थोड़ा कम हुआ है. पैट ग्रू बाई 32% to 55 crores. Shareholders were satisfied with the good performance of the company and in turn good returns provided on their investments. ठीक है, तो शायद टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू होगा, क्योंकि एनबीएफसी है ना, तो रेवेन्यू सेल्स नहीं बोल सकते ना लोग, इनकम मतलब रेवेन्यू बोल रहे होंगे, और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट 55 करोड़ का आ रहा है. स्टेक शेयर satisfied है and in turn good returns provided on their investment. The company had achieved brand loyalty with a satisfied customer base. ग्रुप चेयरमैन मिस्टर सारवा, ठीक है, जैसे अभी मनी हाइस्ट में चल रहा है ना प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर का वो दूसरा नाम था ना सीजन 1 में, सालवा, तो सैलवा सैलवा याद आ रहा है, बट सैलवा नहीं है, सारवा है. ठीक है. An highly regarded intellectual could infer that the communication narrating all the positives of PAL Finance by CEO is relatable to the recent conversation wherein CEO was questioning the relevance of business excellence model. तो ग्रुप चेयरमैन बोल रहा है कि वो सारा बात सीईओ का सुना और उसके बाद उसको याद आ रहा है कि ये सीईओ क्वेश्चन किया था रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल सजेस्टेड फॉर पैल. Mr. Sarva, who is known for his critical observation by his very nature, posted to the CEO on the prevailing insights in the wide group. तो ग्रुप के बारे में कुछ आपको बता रहे हैं. द ग्रुप्स फिलोसॉफी ऑफ बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड 4 मेंशन्ड प्रिंसिपल्स. एक है सस्टेनेबिलिटी. प्रेजेंट सक्सेस डज नॉट गारंटी फ्यूचर. सस्टेनेबल सक्सेस इज क्रूशियल एंड अ कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर. द एसेंस ऑफ एनी बिजनेस मॉडल इज टू बी प्रोएक्टिव rather than being reactive. And excellence in business cannot be attained if the staffs are forced to conform to certain norms. Whatever be the business model that suits the organization, it is not to be taken as a one-time exercise. So कोई भी बिजनेस मॉडल एक बार सेट करके छोड़ देंगे ऐसा नहीं होगा. बिजनेस मॉडल भी इवॉल्व होते रहता है. तो ये बातें यहाँ पर वो बता रहे हैं, ये सब बातें एक तरह से बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल को सपोर्ट करती हैं. मिस्टर सर्वा इंटेंड टू अप्रेज द सीईओ
that business excellence model is an overreaching framework for managing and aligning the multiple organizational initiatives and to have a sustained success for an indefinite future. तो ये बताना चाह रहे हैं कि भैया सीईओ को बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क है, बहुत लोग अभी यूज़ करें फॉर मैनेजिंग एंड अलाइनिंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स एंड टू हैव अ सस्टेन्ड सक्सेस फॉर एन इंडेफिनिट फ्यूचर। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है, तो बेसिकली बच्चों को पढ़ के क्या समझ में आता है पता है कि हाँ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल का क्वेश्चन, हम लोग यही खोज रहे होता है, अरे मेरा जो पढ़ा हुआ उससे कितना मैच हो रहा है। हम लोग ये सब कहानी कहानी करके क्या करेंगे, उतना अपने कहाँ दिमाग लगाने जाते हैं कि क्या बोलना मांग रहा है, वो क्या करना मांग रहा है। ठीक है, बट आपको इस सेशन से ये सीखना है कि आपको बस ये नहीं कि पढ़ के ये पता लगाना है ये कौन सा मॉडल का है, आपको ये समझना भी चाहिए कि स्टोरी क्या बोल रही है। एक पैरा में सीईओ कुछ बोल रहा है, दूसरा में फिर ग्रुप चेयरमैन कुछ बोल रहा है। अगर ये स्टोरी लाइन पकड़ लेते हो तो थोड़ा काम बनता है। सो रिक्वायर्ड में क्या है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू एनालाइज what Mr. Sarva has intended to convey to CEO and why in just 2 lines। तो क्या बताना चाह रहे हैं और क्यों, 2 लाइन में आपको 1 मार्क मिलेगा। तो बताना चाह रहे हैं मिस्टर सारवा कि बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल बोलकर कुछ होता है जिसको लेकर सीईओ क्वेश्चन कर रहा था, तो उसको समझाना चाह रहे रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। सारवा जी सीईओ साहब को समझाना चाह रहे हैं बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल का रेलिवेंस क्या है, ठीक है, जिससे कि सीईओ कन्विंस हो जाए और उसको फॉलो करे। तो 2 लाइन्स बोला है तो 2 लाइन्स गिन के थोड़ी है, वो तो थोड़ा आपका एक स्ट्रेच हो गई। मिस्टर सर्वा इंटेंडेड टू कन्वे द रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, ये की वर्ड है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं इंटेंडेड टू कन्वे द अबाउट द बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, आई थिंक वो भी चलेगा, बट रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल फॉर पैल फाइनेंशियल सीईओ because CEO was questioning the relevance of such a business excellence model in the recent past. Mr. Sarva knows that by communicating the achievements attained by PAL Finance Limited during the financial year, the CEO tries to justify his concern over relevance. Hence, Mr. Sarva mentioned that business excellence model is an overreaching framework for managing and aligning the multiple organizational objectives and to have a sustained success for an indefinite future। वही रिपीट कर दिया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। एक्चुअली सीईओ अपना अचीवमेंट को बताकर यह बताना चाह रहा है कि हम जो सोच रहे हैं वो ज़्यादा सही है देन बिजनेस एक्सेलेंस। ये लाइन को आंसर में लिखा गया है। तो अगर मुझे लगता है आप खाली यही लिखेंगे कि मिस्टर सर्वा वांटेड टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ या रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल टू मिस्टर सीईओ, दैट वुड हैव बीन इनफ। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये क्वेश्चन से लाइन रिपीट करना है। 1 मार्क के लिए आप थोड़ी कुछ 6 लाइन लिखेंगे। तो ऐसा होता है ना, 1 मार्क के लिए हम लोग को कट ऑफ करने का मन करता है, फट से जल्दी से लिख के छोड़ दो। तो लिख के छोड़ना है तो रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, और नेक्स्ट लाइन में जाके लिखना है तो ये लिखना चाहिए कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं हम लोग अपने अचीवमेंट्स को, हम लोग कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने अचीवमेंट्स को, सीईओ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने अचीवमेंट्स को बाई दैट सीईओ ट्राइज टू जस्टिफाई हिज कंसर्न ओवर रेलिवेंस। इसलिए मिस्टर सर्वा थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं उसको कि तुम इसको समझो। सेकेंड सवाल क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एक्सेलेंस। आई थिंक ये दोनों फिर भी मैनेजेबल मार्क्स का क्वेश्चन था। तो व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एक्सेलेंस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप जरूर उसका डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, कि बिजनेस एक्सेलेंस एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपने मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करते हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये आपको बिजनेस एक्सेलेंस का मीनिंग बताया हुआ है, तो वही चीज़ आपको लिख के आना है। देखो जो जो बोर्ड में लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, वो जरूर आपसे उम्मीद करा कि वो लिखा हुआ होना ही चाहिए। तो वो बेसिक डेफिनेशन है जो इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है, डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड क्रिएट वैल्यू फॉर stakeholders। It's also about developing quality management principles that increase the overall efficiency of operation, minimize waste in production of goods and services, and help in increasing employee loyalty। ये सब पॉइंट्स आपको बताया हुआ रहता है कि एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, वेस्ट कम होना चाहिए, एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़ना चाहिए एज अ मीन्स ऑफ मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द बिजनेस बाय अचीविंग एक्सेलेंस इन एवरीथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डज। मुझे लगता है बच्चा लोग ज़्यादा 1 माह का था ना, तो फर्स्ट वाला लिख के आया होगा, उस इतना एक्सटेंड नहीं करने गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आपकी हैं तो वेल एंड गुड है। तो मुझे लगता है ऐसा कि फर्स्ट पैरा अगर कोई लिखा है तो उसको मार्क्स मिल गया होगा, ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है 1 मार्क के लिए।
नाउ थर्ड वाला जो है ना, ये थोड़ा मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का, जो मुझे लगता है कि बच्चे लिखते समय कुछ गड़बड़ाए होंगे इसको। इफ़ यू हैपन टू बी द ग्रुप चेयरमैन, इवेलुएट ईच ऑफ द ग्रुप्स फिलोसॉफी। अगर मैं ग्रुप चेयरमैन होता, ग्रुप्स फिलोसॉफी मतलब ये है, ग्रुप्स फिलोसॉफी, ग्रुप फिलोसॉफी को इवेलुएट करने बोल रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड द अबव मेंशन्ड फोर प्रिंसिपल्स टू द सीईओ टू मेक हिम अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ था कि ये चार फिलोसॉफी से आप उसको बिजनेस एक्सेलेंस समझाइए, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या किए होंगे, वो फिलोसॉफी को ही रिपीट करके आए होंगे, तो उससे कितना मार्क्स मिला है मैं नहीं जानता, बट रिपीट करके आए होंगे। तो प्रिंसिपल नंबर 1 कैसे लिखना है इसको थोड़ा ध्यान देके देखेंगे। प्रिंसिपल 1 सस्टेनेबिलिटी के बारे में था, तो बस वही पहले लिखा हुआ है कि बीइंग प्रॉफिटेबल इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको सस्टेनेबल होना होगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि जैसे हम लोग भी कई बार सोचते हैं अपने बिजनेस में, यार कितना साल से पढ़ा रहे, 13 साल से पढ़ा रहे हैं, सीए बने हुए, ऑलमोस्ट सीए बने हुए तो 12 साल नहीं हुआ, लेकिन उसके 1 साल पहले से फुल फ्लेजेड पढ़ा रहे हैं, तो 13 साल से अगर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या किया आज तक, ऐसा कई बार मन में आता है ना। तो किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले जिंदा तो रहे वो ही काम में रह गए, मतलब कुछ कर लिया। बहुत बार क्या होता है ना, लोग साल भर 2 साल भर में सक्सेस खोजते रहते हैं। तो अगर बोलते हैं कि अगर किसी भी बिजनेस में आप 10 साल निकाल लेते हो तो मतलब आप सक्सेसफुल हो। अगर सेम बिजनेस में आप 10 साल निकाल लियो तो आप ऐसे ही सक्सेसफुल हो। क्यों? क्योंकि 10 साल में तो सब कुछ डिसाइड हो जाता है आपका, कि आप उस सक पाओगे कि नहीं, आप उसके लायक हो कि नहीं, आपके कस्टमर्स आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। ये तो 10 साल तक कोई नहीं खींच सकता है। 95% बिजनेस विल नॉट सर्वाइव इट्स फर्स्ट 10 years, ओनली 5% बिजनेस विल सर्वाइव। तो 10 साल कोई खींच लिया मतलब 5% सर्वाइव करे, 5% वाला जोन में आ गए, जिंदा रह गए। तो कहने का मतलब ये रहता है कि प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय सस्टेनेबिलिटी के पीछे भागना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क क्या हुआ। प्रॉफिट होता है हाई तो है प्रॉफिट दो प्रॉफिट दो प्रॉफिट दो। सस्टेनेबिलिटी होता है कि मेरा ब्रेक इवन हो, प्लस मेरा एक मिनिमम रिटर्न मुझे जो चाहिए, हर्डल रेट जिसको अपने बोलते हैं, कि मैंने जो मेहनत किया हुआ उसके पीछे मेरा एक हर्डल रेट है, वो मेरे को मिल जाए तो भी मैं खुश हूँ, हाई तौबा नहीं करूँगा। तो जो सरप्लस आएगा वो सरप्लस से अपने बिजनेस में कुछ चेंज लाने का कोशिश करूँगा, कैपिटल बढ़ाऊँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा, टेक्नोलॉजी में लगाऊंगा रुपया, कोई नया एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, राइट। ऐसे सोचना पड़ता है, ऐसे आप अपने आप को सस्टेन कर दो, अपना उस रुपया को रिजर्व फंड में रखूंगा, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत आ जाए तो उसको यूज़ करूंगा। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी इनिशियल नीड्स लिमिटेड है। इनिशियल नीड्स अगर आप फैला लोगे, आप बहुत खर्चा करोगे अपने ऊपर, तो फिर सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। और जिंदा रह गए तो कमाई लोगे ना यार। तो वही चीज़ें पे बता रहा है कि प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, organization need to be sustainable in order to survive and grow. No doubt, during the financial year, PAL Finance Limited performed successfully in terms of adding customers. Initially वो कस्टमर ऐड किया है, उसे प्रूव कर सकते हैं आप, 24% कस्टमर सेलिंग मोर सर्विसेज, AUM इंक्रीज हुआ है, इनकम बढ़ा है, पैट बढ़ा है, but it needs to be sustainable. Sustainability is beyond continuing better financial performance, because sustainability comes from satisfaction of your other stakeholders also. That is, society expects companies to operate ethically for overall betterment of the society and environment. Then second, sustainability comes environment. Sustainability हमेशा याद रखना is a combination of three things. Sustainability is always a combination of three things. 3 P's आपने पढ़ा है ना, people, planet, profit। तो जब जब सस्टेनेबिलिटी की बात आएगी तो तीनों चीज़ को इन्वॉल्व करोगे। सिंस क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर इज वन अमॉन्ग एंड सब्सटैंशियल टू द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, थ्रू फोकसिंग ऑन, देखो कैसे बिजनेस एक्सेलेंस को कन्विंस किया जा रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल 1 था सस्टेनेबिलिटी के बारे में, ठीक है, बट क्वेश्चन ये नहीं था ना कि सस्टेनेबिलिटी समझाओ, फिर भी अपने समझाए। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि उन सब से ये बताओ कि बिजनेस एक्सेलेंस का रेलेवेंस क्या है। सो यहाँ पे ये बोल रहा है क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर इज वन अमॉन्ग एंड सब्सटैंशियल टू द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, through focusing on all the classes of stakeholder and harnessing innovation and creativity. Hence business excellence model become relevant to each of the organization including PAL Financial Services.
Here it is important to note that business excellence is a philosophy for developing and strengthening the management system and process of an organization to improve performance and create value for stakeholders. तो वापस डेफिनेशन को रिपीट कर दिया यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल को रिपीट किया है। बस यहाँ पे ये जो लिंकिंग किया ना, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि पहले सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया, जो इनका अपना प्रिंसिपल है, और फिर ये बोला कि इट इज़ sustainability is important part of business excellence, important fundamental sustainability is important fundamental of business excellence. नेक्स्ट सेकंड प्रिंसिपल में आओ, प्रोएक्टिव को लेके था। सो पहले पहले अपने प्रिंसिपल के बारे में बताओ कि प्रोएक्टिवनेस मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो प्रोएक्टिवनेस मतलब हो गया अर्ली मूवर is advantage is always there, hence managing the complexities of the trade environment with agility and proactively become a success factor. For example, PAL Finance Services as a finance services company can think about adopting techniques like नया नया चीज़ अडॉप्ट करके देखो, ब्लॉकचेन एल्गोरिदम अहेड ऑफ अदर्स एंड बिकम अ लीडर रादर देन अ लगार्ड और मियर फॉलोअर। लगार्ड मतलब फॉलोअर, कि आप प्रोएक्टिव रहोगे तो आप बाकियों से आगे चलोगे। एवरी एक्सेलेंस मॉडल फोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्राइव फॉर एजिलिटी। तो क्या है ना, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल के कुछ फंडामेंटल्स है जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, उसमें से एक एक पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर वापस बोल रहे हैं कि बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल में एजिलिटी से कनेक्ट करना है। एजिलिटी मतलब फास्ट होना, फटाफट करना, लोगों से जल्दी कर पाना। तो एजिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फॉर बिजनेस एक्सेलेंस, ठीक है। तो देयरफॉर रेलिवेंट है। ये चीज का आंसर कैसे लिखना आप समझ रहे हैं कि 4 प्रिंसिपल बोला हुआ है, तो पहले एक एक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करें और फिर उसको बिजनेस एक्सेलेंस के फंडामेंटल से कनेक्ट करें। फिर प्रिंसिपल 3 में आपको बताना है वही स्टाफ को फोर्स किया जा रहा है अगर, तो वो काम नहीं होगा, कभी भी एक्सेलेंस अचीव नहीं हो सकता है, स्टाफ रिलेटेड है। सो ईच ऑपरेशन विद द कंपनी enables a corresponding result. Since the business excellence models are holistic tools, hence present a cause-effect relationship between operations and their resultant consequences. If the company wants to achieve a different result, it has to do the things differently. But the question arises, who performs the operation to excel the enablers? The answer is human, especially the staff. तो importance of staff बता रहे हैं यहाँ पर कि वही ultimately जो different काम है वो करते हैं. Since every business excellence model establishes cause and effect relationship, hence staff feel empowered by knowing what value is adding and in the attainment of organization overall objective. Further, an excellence model enables the organization to succeed through the skills of humans, because by inculcating learning and skill in staff, organization can add value to their clients. More mere force to conform to certain norms will not help much. Force करने से काम नहीं होता है. बिजनेस एक्सेलेंस का अगेन एक फंडामेंटल है, बिजनेस एक्सेलेंस का अगेन एक फंडामेंटल है कि यहाँ पे आपका लर्निंग ऑफ अनदर फंडामेंटल आता है कि आपको स्टाफ का स्किल्स बढ़ाने पे काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही लोग अल्टीमेटली क्लाइंट्स से कनेक्ट करता है. मियर फोर्स टू कंफर्म टू सर्टेन नॉर्म्स विल नॉट हेल्प मच. उनको स्किल करो, एडुकेट करो, ना कि बस जो रूल्स बताया गया उसको फॉलो करने बोलो. तो इससे भी समझाया जा रहा है कि बिजनेस एक्सेलेंस इसलिए रेलिवेंट है. प्रिंसिपल 4 में ये बोला गया कि इट्स नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज. तो नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज है मतलब बिजनेस एक्सेलेंस में कोई भी बिजनेस मॉडल आप बना लीजिए, तो कोई भी बिजनेस मॉडल वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, वो हमेशा इवॉल्व होते रहता है. इट्स अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑन वेरियस ऑपरेशंस दैट अल्टीमेटली लीड टू एक्सेलेंस. कोई भी चीज़ आज जैसे करो वैसे हमेशा करते रहो तो गायब हो जाओगे. More importantly, excellence model needs to be used to sustain and maintain excellence, to retain their competitive advantage. They are not to be taken as a one-time exercise by the company. Assessment using this model have to be periodically so that timely action can be taken to achieve the desired result. So business excellence requires periodic assessments. So that means आपका periodic assessment and continuous improvement. तो इससे ये समझ में आ रहा है कि देखो वो फोर्थ वाला प्रिंसिपल भी किस तरह से बिजनेस एक्सेलेंस को रेफर कर रहा है.
बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल कंसिडर वेरियस मैनेज सॉरी ये तो खत्म हो गया, आई एम सो सॉरी, फ्लो में मैं पढ़ता चला गया। अब ये पार्ट सी आया, इसमें बस खाली यही सीखना था कि कनेक्ट फोर प्रिंसिपल्स विथ रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एक्सेलेंस। मुझे लगता है कि जो भी बच्चों ने इसको किया वो ये चीज़ उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ऐसा कभी पहले देखा हुआ नहीं। नाउ पार्ट डी ई एफ फिर भी मैनेजेबल था। पार्ट डी में लिस्ट द टूल्स अवेलेबल फॉर पैल फाइनेंस टू अचीव एंड सस्टेन एक्सेलेंस। इसमें 2 मार्क है, तो ये आराम से आप बोल सकते हैं ई एफ क्यू एम करके एक फ्रेमवर्क है, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। दूसरा बार्ड्रिज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सेलेंस है। तीसरा जापान का जापान फ्रेमवर्क है, जापान क्वालिटी अवार्ड मॉडल। चौथा ऑस्ट्रेलिया का है। पांचवा सिंगापुर का है। अब 2 मार्क का तो चार तो लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जितना आता है पता लिख दीजिए ना, खाली नाम ही तो लिखना है। सिंगापुर बिजनेस एक्सेलेंस फ्रेमवर्क है, ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस एक्सेलेंस फ्रेमवर्क है, जापान में इट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटी अवार्ड मॉडल, बाल्ड्रिज में इट इज़ कॉल्ड एज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सेलेंस, ईएफक्यू में यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल। तो ये नाम लिखना है 2 मार्क का, ये फिर भी मैनेजेबल था। फर्स्ट वाला में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चा लोग का गड़बड़ हो सकता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो बच्चा लोग फिर भी घुमा फिरा के लिख दिया होगा बिजनेस एक्सेलेंस। सेकंड वाला में बिजनेस एक्सेलेंस का डेफिनेशन सबको लिख गया, थर्ड में मिस्टेक हुआ होगा, फोर्थ में नाम लिखना ये सबके बस का बात था आराम से। फिफ्थ भी इजी था, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया अप्लाई द फंडामेंटल्स ऑफ ईएफक्यूएम मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैल। So PAL is a well-established player in the industry and is planning to expand its business in order to achieve business excellence. Apply the fundamentals. अब इसमें क्या है ना, बच्चा लोग खाली नाम लिख के आया, वर्ड अप्लाई को फॉलो नहीं किया, इसलिए जो भी नाम लिख के आया उसको पूरा मार्क्स नहीं मिला। ठीक है, अप्लाई कैसे करना ये एक चैलेंज है। ओके, और फोर्थ में क्राइटेरिया ऑफ द मॉडल कंप्राइजेस ऑफ एनेबलर्स एंड रिजल्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज मेंट बाय एनेबलर एंड रिजल्ट। ये जो भी है आप लोग मैनेज कर लिए हैं, मेरे को पता है। इसमें नाम लिखा तो पूरा मार्क्स नहीं मिला, और इसमें एनेबलर रिजल्ट आप जैसे भी लिख कर आए आपको मार्क्स मिला होगा। तो अपने अप्लाई वाला में चलते हैं। तो अब पहला अप्लाई के पहले वो टूल्स जो था, वो टूल्स का नाम आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें वो स्टार्टिंग में वापस जो जो डेफिनेट और कुछ इंट्रोडक्शन में लिखा हो उतना ज़रूरत नहीं है, बस मॉडल्स का नाम भी लिखे तो भी मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद आता है पार्ट ई, जिसमें आपको अप्लाई करना है फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में 8 पॉइंट थे। मेरा एक निमोनिक बनाया हुआ था, ओला टैलेंट CCFC, मेरा ये निमोनिक बनाया हुआ था। टैलेंट से 1 पॉइंट है, CCFC से 4 पॉइंट है, और ओला से 3 पॉइंट है। ठीक है, ओला टैलेंट CCFC ये मेरा बनाया हुआ था। तो इससे लोगों को पॉइंट्स तो याद आ गए, लेकिन अप्लाई कैसे करें पैल के लिए, तो एप्लीकेशन वाला चीज़ पे भी आप नज़र दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप भी इंट्रोडक्शन लिखिए जब इंस्टीट्यूट दे रहा है तो। एज मैंशन पैल हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज PFL is a well established player in the industry and is planning to expand business। नया वर्टिकल में जा रहा है ना वेल्थ मैनेजमेंट में। Hence to attain business excellence it can adopt EFQM model because the 8 fundamentals are the basic principles that describe the essential foundation for any organization to achieve sustainable excellence। Therefore creating an EFQM management document gives the PFL a holistic overview of its strategic goals। So यहाँ पे बस यही बता रहा है कि why EFQM can be used, why EFQM can be used। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज 8 fundamentals are the basic principles that describe the essential foundation of any organization to achieve sustainable success। Because 8 fundamentals are the basic principles that describe the essential foundation। ठीक है, अब ये लाइन लिखना किसी को याद नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं। ये 8, फिर ये ड्राइंग थोड़ी बना के आना है आपको, आपको पॉइंट्स याद रखना है। 8 फंडामेंटल्स देखो, मेरा जो ओला टैलेंट CCFC था वो कैसे था, ओला का O, L फॉर लीडरशिप,
T फॉर टैलेंट, सो टैलेंट का T पूरा टैलेंट ही लिया हुआ है। A फॉर एडिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स, तो ओला आ गया। फिर CCFC, C क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर ना, ऐसा नहीं होगा शायद, फ्यूचर का F लिया हुआ होगा। फिर कैपेबिलिटी का C, फिर क्रिएटिविटी का C, CCFC, तो ओला ये फिर कस्टमर्स का C लिया हुआ है, ये A इसका लिया हुआ है, ठीक है। ओला टैलेंट CCFC, मतलब ओला टैलेंट इस तरफ का है और CCFC उस तरफ का है। इस तरह से पॉइंट्स याद रखा जा सकता है। अब पहला आ रहा है, देखो अप्लाई कैसे करना है उस पर ध्यान देना। एडिंग वैल्यू टू कस्टमर, पहले उसके बारे में बता सकते हो, या फिर अगर अप्लाई पूछा ना तो डायरेक्ट अप्लाई करो कि आपको याद हो हम लोग यहाँ पे कहानी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन कन्विंस करना चाह रहा है CEO को कि तुम बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल को अप्लाई करो, और उस चेयरमैन CEO अपना ही कुछ गाना गा रहा है, अपना ही बड़ा ही ठोक रहा है कि मैंने देखो फोकस ऑन कस्टमर नीड्स किया था। तो वो तो मैच हो गया, ये अच्छा है, तेरा एक प्रिंसिपल मैच हो गया। देखो PFL needs to understand their customers, their needs, anticipate their needs and make use of opportunities to fulfill their expectation। एक एक्सेलेंस थ्राइव करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर का डिमांड किया हुआ नीड को तो समझता ही है, उसके अलावा वो एंटिसिपेट भी करता है कि उसका नीड क्या हो सकता है, और फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ को फुलफिल करने का कोशिश करता है। PFL इज वर्किंग इन द रेगुलेटेड सेक्टर। अब ये सब जो एप्लीकेशन है ना, ये आप लोग का मिस हो जाता है। दे आर वर्किंग इन रेगुलेटेड सेक्टर बट स्टिल दे आर डाइवर्स, there are diverse financial products and services which customer of PFL require or desire because it has a wide portfolio of products that spread across a wide range and classes of customers। अब आप सोचिए, जैसे मैं बोला स्टार्टिंग में बजाज फाइनेंस का एग्जांपल रिलेट करो, तो बजाज फाइनेंस ने कहीं ना कहीं जाके तो ये सोचा ना कि लोगों को फ्रिज लेना होता है, AC लेना होता है, और उसके लिए वो लोग एक साथ इतना लमसम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो उसके लिए भी इंटरेस्ट फ्री EMI या ज़ीरो इंटरेस्ट वाला सिस्टम में कुछ जाना चाहते हैं, उसके लिए भी फाइनेंस लेना चाहते हैं। तो नीड एंटिसिपेट करना और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, तब एक्सेलेंस आता है, तब बजाज फाइनेंस इतना बड़ा कंपनी बना। Hence, before going to how it can meet customer needs, PFL should be clear on what need of customer it can satisfy considering the resources and capabilities। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब कस्टमर का हर नीड आपको पूरा नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि कौन सा नीड हम अपने कस्टमर का अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। Once the what is clear, the PFL should have mechanisms to find out and anticipate customer preferences. Accordingly, it should structure its operations to add value to the clients in terms of quality, availability, support, experience, and flexibility। Communication of CEO shown commitment to this fundamental। देखो जो जो बोल्ड है ना, आप उस पर नज़र डालो कि वो सब पॉइंट्स आपको अपने आंसर में डालने ही डालने हैं, ठीक है। सो इसमें क्या क्या बोल रहा है कि कस्टमर का नीड पहले पता करना चाहिए आपको, नीड्स एंटिसिपेट करें। फिर दूसरा बात बोल रहा है आप अपना कैपेबिलिटीज़, ओन रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ की जांच करें कि आपके शक्ति में क्या नीड पूरा करना है। कस्टमर का इतना नीड है कि हम उसको पूरा कैसे कर देंगे, हमारी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है। और फिर आप अपना कौन सा नीड पूरा कर सकते हैं बेस्ड ऑन दोज रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, उन दोनों को लिंक करके आप ये सोचिए कि किस तरह से हम उनको वैल्यू ऐड करके दे सकते हैं। स्ट्रक्चर इट्स ऑपरेशन टू ऐड वैल्यू टू इट्स क्लाइंट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, सपोर्ट, एक्सपीरियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और कम्युनिकेशन ऑफ CEO, आप इसमें बोल सकते हैं CEO इज ऑलरेडी फॉलोइंग इट, CEO इज ऑलरेडी फॉलोइंग इट। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर यहाँ पे है ना, वो इसके बाद एडिंग वैल्यू के बाद ये नंबर 1 है, तो ये नंबर 2 है, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए वही 3P का बात करेंगे। 3Ps, पीपल, प्लानट एंड प्रॉफिट। ऑलरेडी प्रॉफिट पे तो आप काम कर रहे हैं, बट आप पीपल प्लानट पे भी काम करिए। तो डिस्पाइट PFL इन एन इंडस्ट्री दैट इज इन एन इंडस्ट्री, इज यहाँ पे छूट गया है, is in an industry that has a less environmental impact but still needs to assess the environmental impact of its operation and took measures to minimize the adverse impact, if any, such as
ऐसा हो सकता है ना, कोई बिल्डिंग में ऑफिस में एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, कम करें, पेपर यूज़ कम करें बाय शिफ्टिंग टू ई रिपोर्ट्स. At the same time, it also needs to conduct social impact analysis in terms of employment it generates, work culture it provides, CSR activities होगा यहाँ पे, activities that it undertakes, and the nature, profile, and socio-economic importance of business clients to whom it helps through offering financial product or services. तो कैसे बता रहा है यहाँ पर, पहले तो ये पता है कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए यू हैव टू वर्क ऑन 3 P's. प्रॉफिट इज ऑलरेडी देयर, पीपल प्लानट हैज़ टू बी वर्कड अपॉन. सो पीपल एंड प्लानट एंड प्रॉफिट. तो पीपल के लिए आपको क्या करना है, एक सजेशन दिया गया, आपको सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस कंडक्ट करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एम्प्लॉयज़ आपसे खुश है कि नहीं, आपका बिजनेस सोसाइटी में कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है. आप इसमें एम्प्लॉयज़ और आप अपना CSR एक्टिविटीज़ को एनालाइज करिए. फिर प्लैनेट को लेकर हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लैनेट को लेकर हम लोग बोल रहे हैं, हालांकि आपका बिजनेस में कोई ऐसा कोई धुआं हुआ छोड़ने का काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हो सके तो पता करिए कि क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ है जिससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, और उस पर काम करिए. जैसे एनर्जी कंजम्पशन को आप कंट्रोल करिए, पेपर का यूसेज को आप ई पेपर में ट्रांसफ़र हो जाइए, स्टेटमेंट वगैरह में बहुत पेपर वेपर आप लोग प्रिंट करके भेजते होंगे. तो ये सबसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो आप ऐड कर रहे हैं उसको कम करने का कोशिश करिए. गूगल ने क्या किया पता है, अपने एक ऑफिस में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए बोला कि प्रिंटर है ना, जहाँ पे आदमी लोग काम करते हैं, जानबूझ के बहुत लंबा बड़ा बड़ा ऑफिस होता है, मान लीजिए आदमी का वर्किंग एरिया यहाँ पर है, ठीक है, और प्रिंटर लगा दिया एकदम कॉर्नर रूम में, जानबूझ के. क्यों लगाया, क्योंकि आदमी कंटाल में जाके प्रिंट करे ही नहीं. और प्रिंट करने वाला लोग का जो रूम है, वो रूम में लगा दिया एक अलग तरह का आईडी कार्ड. जब तक वो आईडी कार्ड आप स्कैन नहीं करेंगे आप अंदर नहीं घुस सकते. और फिर प्रिंटर में भी लगा दिया एक आईडी कार्ड कि जब तक आप आईडी कार्ड स्कैन नहीं करेंगे पन्ना बाहर नहीं आएगा. मतलब आपके नाम पर वो मेज़र कर रहा है कि आप कितना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऐड कर रहे हो, और आपको भेज देगा कि देखो तुम्हारा कारण कितना पेपर वेस्ट हो रहा है, तुम इस पर ध्यान दो, तुम इन्वायरमेंट के लिए सोच नहीं रहे हो. तो इस तरह से मतलब चीज़ों को दूर करके उन्होंने सोचा कि लोगों का हैबिट चेंज किया जाए. समझ में आया. तो वो चीज़ आपको लिखना नहीं है, मैं तो ऐसे ही फैक्ट सबको बताया कि आपको कुछ याद हो जाए ये सब के बारे में. नेक्स्ट है डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी आपका एम्प्लॉय का ट्रेनिंग से आता है. यहाँ पर देखो कैसे कैपेबिलिटी के बारे में बात हो रहा है. Companies need to manage change within the organization and beyond. PFL should identify what it is capable of being great at. Only when then it is able to differentiate from its competitors. In the finance sector, the major features of excellence include secure, reliable, and confidential services. Hence, PFL should strive to attain the same. तो देखो PFL के केस में कैसे कैपेबिलिटी बढ़ेगा, तो उसमें बोल रहा है सिक्योरिटी से बढ़ेगा, रिलायबिलिटी से बढ़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी से बढ़ेगा. Hence, PFL should strive to attain the same. Further, PFL should identify and develop unique capabilities to have a competitive edge in the market. Communication of CEO shown commitment to this fundamental too, as he mentioned that PFL is building partnership to achieve best practices. तो यहाँ पे capability को relate किया गया है partnership से. Capability is indicating partnership. ठीक है. So which is already being followed by, which is already followed, already done by CEO. तो इस पे CEO काम कर भी रहा है. ओके. सो कैपेबिलिटीज़ यूनिक होनी चाहिए जिससे कॉम्पिटिटिव एज आए. ये भी एक कैपेबिलिटीज़ का फीचर यहाँ पे बताया हुआ है. यूनिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा कुछ जो आप ही कर पा रहे हैं, बाकी दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे हैं. कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए. तो ये सब कुछ की टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ों को याद रखने में हेल्प मिलेगा. ठीक है. सब चीज़ में आइडेंटिफाई तो कर ही रहे हैं और फिर उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ के कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, कि अप्लाई कैसे करें. नाम तो सभी लिख रहे हैं, बच्चे लोग खाली नाम लिख रहे हैं, और आप उम्मीद करें कि 9 में 9 मिलेगा, मुझे डाउट है. हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन.
सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन ब्रिंग वैल्यू टू द कंपनी। इनोवेशन पे भी सीईओ काम किया है, आप रिलेट कर सकते हो। PFL should promote a working environment that enables and appreciates creativity and innovation. Since the sector is regulated and the fund is involved, hence SOPs should adhere, but innovation in terms of technological breakthroughs is a great move, such as e-services and 24/7 access. PFL has already undertaken a few steps in this direction. Communication of CEO shows commitment to this. Creativity can be in the form of creating and offering न्यू और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इनोवेशन को लेकर ई सर्विसेज के बारे में आप बोल सकते हो, ऑलरेडी अचीव किया हुआ है आपका सीईओ के थ्रू। बट क्रिएटिविटी के लिए आप बोल सकते हो कि आपको नया प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहिए दैट आर केपेबल टू केटर टू द नीड ऑफ बिजनेस इन डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये क्रिएटिविटी की बात आ गई और ऊपर में इनोवेशन की बात आ गई। ठीक है, तो मतलब आप इनोवेशन के बारे में क्लेम लिखो, क्रिएटिविटी के बारे में लिखो, बट ये नहीं कि क्रिएटिविटी क्या होता है। आपको अगर वो बताना है तो बताओ, अप्लाई करने बोला तो PFL कैसे उसको सोचेगा वो बताना है। ट्रिकी था। लीडिंग विथ विजन, इंस्पिरेशन एंड इंटेग्रिटी, लीडर शेप्स द फ्यूचर। अब उसके बारे में बता रहे, बिकॉज इट इज द लीडर हु डिफाइन द very purpose of the existence of the organization through a vision statement. They also decide the progress and its phase through the inspiration that they themselves carry and pass on to the subordinates, as well as they impact the integrity which each stakeholder of organization possess. They also decide, क्या लिखा हुआ है, the progress and its phase through the inspiration। प्रोग्रेस का फेज क्या होगा वो भी वो सोचते हैं। फिर वो इंस्पिरेशन खुद भी कैरी करते हैं और दूसरों को पास ऑन भी करते हैं, एंड इंटेग्रिटी को भी वो ईच स्टेक होल्डर के लिए मेंटेन करते हैं। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो दिखाते हैं। द लीडर एंड मैनेजमेंट एट PFL शुड हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट टू अचीव, डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू अचीव इट, वर्क विद इंटेग्रिटी एंड एथिक्स। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ इस तरह का कोई रिलेटेबल हिंट नहीं था, तो बस हमने डायरेक्शन दे दिया कि लीडर्स को क्या क्या करना है। लीडर्स को क्या क्या करना है, लीडर शुड हैव क्लियर विजन, लीडर्स शुड बी एबल टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजी, और फिर लीडर शुड बी वर्किंग विथ इंटेग्रिटी एंड एथिक्स। इंटेग्रिटी एंड एथिक्स, ठीक है। तो दे डिफाइन द पर्पज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ विजन स्टेटमेंट। सो इसलिए विजन होना चाहिए। दे डिसाइड द प्रोग्रेस, इससे प्रोग्रेस स्ट्रेटजी के थ्रू आता है, और फिर उनमें भी इंस्पिरेशन होना चाहिए उसको अचीव करने का, जो वो सबॉर्डिनेट्स में पास ऑन करते हैं, एज वेल एज दे इम्पैक्ट द इंटेग्रिटी। तो उसी को लेके सेंटेंस बनाया हुआ है पहले, और फिर PFL को डायरेक्शन दिया हुआ कि उसको ये 3 चीज़ करना है। तो मुझे लगता है, जैसे देखो, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो एग्जाम एंगल से कम जो बोल्ड वाला है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको। फिर मैनेजिंग विथ एजिलिटी। एजिलिटी मतलब होता है कि आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटीज आ रहा है तो आप उसको ग्रैब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बीइंग एजाइल मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल, hence bring the capabilities to identify and respond proactively to opportunities and threats. PFL should respond proactively to changing dimension of the business to make necessary changes in their products and process through those products rendered to remain ahead of the market. So what do we have here is respond proactively। क्या बोलेंगे, respond proactively, okay, to the changing dimension of the business to make necessary changes in their product and processes। ये भी बोल सकते हैं necessary changes in the products and processes। ये वाला ऊपर में जो प्रोएक्टिव वाला पॉइंट था उससे भी मैच होता है ना। ऊपर में जो प्रोएक्टिव वाला प्रिंसिपल प्रीवियस पार्ट में बताया था, तो प्रोएक्टिवनेस और एजिलिटी कनेक्ट होता है। ये वाला देखिए, एजिलिटी का यहाँ पे भी बोला हुआ है ना कि आप नया नया चीज़ अडॉप्ट करने का कोशिश करो जिससे कि आप दूसरों से अहेड रह पाओ।
तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोलना है। नेक्स्ट आ रहा है 7, सक्सीडिंग थ्रू द टैलेंट ऑफ पीपल। वही स्टाफ को फोर्स नहीं करना है, उनको हमेशा ट्रेन करना है। और क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज़ ह्यूमन हु बिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉस्पर्स इट, हेंस एन ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली एज गुड एज द पीपल हु वर्क इन इट। अ कंस्ट्रक्टिव वर्क कल्चर where learning and job satisfaction are put on priority and can help our nation to attain excellence to generating competitive advantage. Hence, PFL should develop a culture where the goals of individuals shall be in alignment with the organization objective. Further, PFL shall develop a system of performance management that comprises the metrics for performance evaluation, reward recognition, training programs, and talent networking to cultivate talent within the PFL. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए आपको गोल अलाइनमेंट करना चाहिए, उनके लिए आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बैठाना चाहिए, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने चाहिए, उनके लिए टैलेंट नेटवर्किंग भी आप कर सकते हो। टैलेंट नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मतलब आपस में मिलजुल के कोलैबोरेटिव वे में सीखो सिखाओ वाला कॉन्सेप्ट को टैलेंट नेटवर्किंग बोलते हैं। तो दीज आर टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट, सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, fostering a culture wherein adopted best practices become the standard operating procedure. So best practices जो भी आप अडॉप्ट कर रहे हो दैट ओनली शुड बी फॉलोड ऑलवेज, उन्हीं को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब हमेशा जब जब काम होगा ऐसे ही होगा। कैन स्टैंड आउट एन ऑर्गेनाइजेशन अहेड ऑफ द अदर्स, हेंस स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस इज नॉट वन इन अ वाइल एफर्ट, इट रिक्वायर्स प्रिजर्वेंस एंड कंटिन्यूटी। ये बेस्ट प्रैक्टिस इवॉल्व होते रहना चाहिए, इवॉल्विंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जो एसओपी लिख दिया वही फॉलो होगा। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो इट रिक्वायर्स कंटिन्यूटी, नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज। ठीक है, वन टाइम एफर्ट। इसके लिए कॉन्स्टेंट एंड पीरियोडिक इवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड टू कीप अप द सस्टेन्ड एक्सेलेंस। तो देखते रहना है कि इसका आप प्रोसीजर्स का कॉन्स्टेंट एंड पीरियोडिक इवेल्युएशन कर रहे हो कि नहीं। बिकॉज वॉट एवर इज बेस्ट टूडे इट मे नॉट बी बेस्ट टुमारो, राइट। तो आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के छोड़ दिया और फिर बाद में आप ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 का 8 पॉइंट। ऐसे 8 याद रखना इजी था, बट उस 8 के बारे में लिखना थोड़ा सा टफ था कि पीएफएल को हम कैसे अप्लाई करके दें। तो इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन हम लोग के पास था पहले, वो कोई गारमेंट इंडस्ट्री को लेकर था, और ये वाला फाइनेंस इंडस्ट्री को लेकर आ गया। तो किस तरह से अप्लाई करना है। अब जैसे क्या होता है ना, जब तक अंदर का कीवर्ड्स भी याद ना हो कि सस्टेन आउट, अपने क्या करते हैं बहुत बार खाली पॉइंट्स याद कर लेते हैं। ओके, ओला टैलेंट CCFC पॉइंट्स याद हो गया, बट उसके अंदर का भी दो चार बात नहीं ध्यान रहेगा तो आप क्या लिखोगे। तो सस्टेन रिजल्ट्स में क्या लिखना है, एसओपी के बारे में लिखना है, पीरियोडिक इवैल्यूएशन के बारे में लिखना है, सक्सीडिंग थ्रू टैलेंट ऑफ पीपल में क्या लिखना है। अगर ये सब बात लिखने का नहीं याद हो तो कैसे आप नेक्स्ट टाइम इलेबोरेट करोगे। उसके अंदर का जो डेप्थ है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, खाली पॉइंट्स से इलेबोरेट भी नहीं होता है। अब होता है जब नहीं कुछ याद हो तो पॉइंट से लिख कर आ गए तो जो हो गया वो अलग चीज़ है, बट अगर कंप्लीट नॉलेज की बात करें तो अंदर का भी कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा जिससे आप उसको इलेबोरेट करोगे। जब क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर में क्या लिखना है, 3 P's लिखना है, ये नहीं पता हो तो कैसे काम होगा। एडिंग वैल्यू टू कस्टमर में उनका नीड आइडेंटिफाई करके फिर अपना ओन रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ को देख कर उसको मैच करके आप उनका नीड को जस्टिफाई करेंगे। ये सपने में भी नहीं क्लिक करेगा, खाली आपको नाम याद रहेगा, बस आप एक लाइन लिख दो, ऑर्गेनाइजेशन शुड थ्राइव फॉर एडिंग मोर एंड मोर वैल्यू फॉर देयर कस्टमर्स। तो आप उसी लाइन को पता चला खाली रीराइट कर रहे हो। आपको रीराइट नहीं करना है, आपको उसके बारे में वो अचीव कैसे करना है वो बोलना है। तो उसके लिए थोड़ा तो एक बार डेप्थ आपको पता होना चाहिए। तो वो डेप्थ एक बार ध्यान दे के समझ लोगे, याद रख लोगे, तो फिर पॉइंट्स याद रख के काम हो सकता है कि मुझे हाँ इसके अंदर का याद है। पहले पॉइंट्स याद रखना है, फिर इसके अंदर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट है देखिए, EFQM में इनेबलर और रिजल्ट्स का मतलब क्या है वो बताना है। इनेबलर मतलब जिस पे आप काम करते हैं, और रिजल्ट मतलब जो आपको इनेबलर पे काम करने से मिलता है। सो इनेबलर इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज और रिजल्ट इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स। और रिजल्ट के फीडबैक से इनेबलर इंप्रूव किया जाता है। वो रडार फ्रेमवर्क से हमेशा रिजल्ट के फीडबैक से इनेबलर को
इम्प्रूव किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट्स आर कॉस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट रिजल्ट्स आर कॉस्ट बाय enablers and enablers are improved using enablers are caused improved using feedback from results, and hence enablers and results together can help PAL to understand the cause and effect relationship between what they do and what they achieve. तो दोनों का काम क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको समझाना है। और आप ऑफकोर्स नाम भी लिख देंगे, जो बोल्ड किया हुआ मतलब वो लिखना जरूरी है कि एनेबलर्स में क्या क्या एनेबलर्स होते हैं। एफकेएम फ्रेमवर्क में 5 एनेबलर होते हैं, लीडरशिप, स्ट्रेटेजी, पीपल, पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज 4 है और प्रोसेसेस 5 है। और 4 तरह के रिजल्ट्स होते हैं, कस्टमर रिजल्ट्स, पीपल रिजल्ट्स, सोसाइटी रिजल्ट्स एंड बिजनेस रिजल्ट्स। ये सबको याद है, मुझे लगता है नाम सबको लिखा होगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन कि एनेबलर क्या करता है वो बहुत लोग छोड़ दिए होंगे, खाली नाम लिख कर आए होंगे। तो थोड़ा सा समझने का ये ज़रूरत है कि आपको नाम भी लिखना है। व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स, नाम लिखने के बाद व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज इज एनेबलर, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इज रिजल्ट। ठीक है। और दोनों में कोरिलेशन क्या है कि रिजल्ट के फीडबैक से एनेबलर इम्प्रूव किया जाता है। फीडबैक from results improves enablers। ठीक है, फीडबैक फ्रॉम रिजल्ट्स इम्प्रूव enablers। एंड इसी के बाद आपको बताया गया है कि ये enabler और उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ऐसे तो EFQM फ्रेमवर्क का जो डेफिनेशन होता है उसमें ये बात बोलते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन enablers एंड रिजल्ट्स। इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी अपने EFQM फ्रेमवर्क पढ़े, पुराना वाला है, 2020 में इसको पूरा मॉडिफाई कर दिया गया है। वेरी सुन उसमें अगर चेंजेस आएगा तो आपके सिलेबस में अपडेट होगा, अभी तो पुराना वाला ही पढ़ना है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता के रखा, आप वैसे गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कि नया वाला EFQM फ्रेमवर्क है, बट अभी तक इंस्टीट्यूट ने अपने मैट में नहीं डाला है, तो हम लोग अभी पुराना वाला ही पढ़ेंगे। चलो, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ लर्निंग था, मैं एक बार क्विकली आपको वापस ध्यान दिला दूं। लर्निंग था कि फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, सेकंड पार्ट फिर भी मैनेजेबल था, थर्ड पार्ट में वो 4 प्रिंसिपल से सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस बोलना था, उसमें गड़बड़ हो सकता है। फोर्थ पार्ट इजी था, फिफ्थ पार्ट में अप्लाई करना था फंडामेंटल्स, ना कि जस्ट फंडामेंटल का नाम लिखना था। तो ये अप्लाई करने में हम चूक जाते हैं, क्योंकि हम लोग को फंडामेंटल का नाम तो याद रहता है बट अंदर में क्या लिखना उतना ध्यान नहीं रहता। इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम देके एक बार और एक जो बिजनेस एक्सीलेंस का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो लुधियाना वर्ड बोल रहा हूँ, गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, फैशन इंडस्ट्री से, वो आपको अपने सेम मैट में या फिर हमारे DJP बुक में मिल जाएगा। आप उसमें देखिएगा, उसको एक बार और पढ़िएगा, दोनों को सामने रख के। वो 8 फंडामेंटल उसमें भी अप्लाई किया हुआ है, इसमें भी किया हुआ है। इनफैक्ट इसमें ज़्यादा डेप्थ में किया हुआ, उसमें बहुत हल्के में किया हुआ था। तो उसको थोड़ा सीख के एक बार रिलेट करके रख लीजिए कि उसके अंदर में हम लोग को क्या क्या लिखना होता है। और क्राइटेरिया में इनेबलर्स का नाम और रिजल्ट्स का नाम तो आप लिखे ही हैं, उसके अलावा आपको उन दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है कि इनेबलर से हम जो करते हैं उससे रिजल्ट अचीव होता है, और रिजल्ट के फीडबैक से इनेबलर इंप्रूव होता है। ये बात भी लिखना चाहिए। सर 3 मार्क के लिए कितना लिखेंगे? अब ये मेरे को मत बोलिए, 3 मार्क के लिए जितना एग्जाम में समय होगा, दिमाग चलेगा, उतना ही में लिखेगा। बट अभी नॉलेज के लिए सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो।